back in 1989-90 जी उसने मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा जब एसपीए देखा. Shall we start, sir? Yeah, we should. Yeah. Namaste and good evening, everyone. Welcome to Tuesday lecture series presented by Vigyan Prasad and National Mission for Clean Ganga, especially for Vigyan Prasad Network of Science Club. As you all know, the last Tuesday lecture of every month is dedicated to the National Mission for Clean Ganga, where we learn and understand the different aspects of the mission. My name is Dr. Nidhisha Vasu. I'm project scientist here at Vigyan Prasad and will be your moderator today. It's my privilege to welcome the distinguished panelist of today's session, Mr. Manu Bhatnagar, Principal Director, Indian National Trust for Art and Culture Heritage, New Delhi; Shri Piyush Gupta, Assistant Real-Time Information Specialist, National Mission for Clean Ganga; Dr. Nakul Parashar, Director, Vigyan Prasad; Shri Sachin Narwadia and Mr. Vipin Singh Rawat from VIPNET team of Vigyan Prasad. I also welcome all the club members who have joined us for this session today. Thank you everyone for taking time out and being here. For the ages, the river Ganga has been the integral part of Indian spirituality. It gives a sense of belonging and pride to the people of India. The river Ganga has been admired by all the people of all the religions in India as not only an unending source of nourishment but as a part and parcel of their culture. But over the time, due to the exploitation of these natural resources had been taken place which have negatively affected the cultural sites and activities along the banks of these rivers. Some of the prominent sites and festivals are very well known by each of us. However, there are numerous such rituals and sites of local significance lying along the stream of River Ganga, which is ignored and gradually fading away from the public memory. In today's talk, we have an opportunity to learn about the forgotten cultural heritage of the River Ganga and to understand the science associated with it. The topic of today's lecture is scientific pointers along the river Ganga, and today's expert is Mr. Manu Bhatnagar, Principal Director, National Heritage Division, Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage, New Delhi. As you all know, the talk will be of 40 to 50 minutes followed by interaction session. You can write your queries or doubt regarding the session in the comment section of the YouTube. We will take them one by one once the talk is over. To begin with, I would like to invite the Director Vigyan Prasad, Dr. Nakul Parashar sir, to welcome remarks and to introduce our today's speaker. Nakul sir. नमस्कार. मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर. ग्रेट, थैंक यू सर. प्रथम आदरणीय डॉक्टर मिस्टर मनु भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. विज्ञान प्रसार नेटवर्क क्लब्स की ये हर मंगलवार को होने वाली हमारे जो डिस्कोर्सेज हैं उस सीरीज में आज आपका स्वागत है. और सबसे प्रथम मैं हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. आपका परिचय मैं ज़रूर पढ़ूंगा and I'll certainly go through whatever we have to talk as per a part of our series. However, the most important thing is that today we've all witnessed it's a great day today, that in the forenoon we had a number of initiatives of the National Mission of Clean Ganga that got accomplished. Namami Gange Mission project had number of projects that got accomplished this morning, where our most respectable Prime Minister Shri Narendra Modi launched a number of initiatives today. And while we talk on every last Tuesday of the month, we have an expert, a subject matter expert of repute, of eminence with us to deliver a lecture. Scientific pointers along Ganga. It's a very important topic and an aspect that we've always been looking at. And whenever it comes to Ganga, we all get excited about, we've all through our life, through our school, up until the last moment, we've been emotionally and very, family-wise attached to Ganga for reasons galore. Not only because of its sanctity of that we have grown in our mythology, but also with a rich, wide biodiversity that flourishes along with Ganga and other
rivers of the Ganga, the tributaries of the Ganga, that I may say so. The entire Ganga basin is blessed to have a very rich and a very wide biodiversity. And there are a lot of things that are important for us to understand about Ganga, and to look Ganga from a scientific perspective. It's very important to understand what are the major points associated with this. And nobody better than a person who is an architect, a person who is an urban and an environmental planner, who is there to help understand this. Nobody better than him could be there. We are blessed, honored, and privileged to have Mr. Manu Bhatnagar, who is an architect, urban and environmental planner with over 30 years of experience in the environment sector. Mr. Bhatnagar is currently, as Dr. Nidhi Srivastava just told us, is the principal director of the Natural Heritage Division of INTAC. Mr. Bhatnagar is an alumnus of the Cornell University with qualifications in regional planning. He has extensive studies made in the field of strategic management, strategic environmental assessment, ecology, habitat management, environmental law, conservation of rivers and lakes. And that's the reason why we are talking, and we've gotten him here for such an important topic today: eco services, system services and sustainable development, disaster management, from a number of prestigious institutes in and around the country. He has been a visiting faculty of the School of Planning and Architecture in Delhi, and also the Center for Heritage Management of the Ahmedabad University. Presently, as we have just told, he is the principal director at INTAC and is also serving as a nominated expert member of the UP government's multi-stakeholder platform for Ganga tributary management of Wetland Authority of Delhi, of the NMCG Committee on Yamuna River e-flows. He has worked in India and Southeast Asia on diverse projects ranging from cultural documentation, river conservation, lake management, water policy, sustainable agriculture, and urban diversity. There are a lot that we can go on and on to talk about Mr. Bhatnagar. Welcome, Mishra ji, namaskar. Glad to see you here, sir. And congratulations for a great day today to have accomplished a number of projects that got released by the Honorable Prime Minister today. Congratulations to you, sir. And thank you so much. Thank you so much. And I'm very glad to know, I mean, we feel very honored and proud because we are now associated with you. We are working with you. We feel very honored. So back to where I was introducing our eminent speaker today, Mr. Bhatnagar has a lot of laurels that he has accomplished. He has gathered to his entire portfolio. I would now request Professor Bhatnagar, because I know not only you, but I am equally eager to hear him and go through his wide range of presentation that he might have. Because I just got a chance to see, it's like a backstage kind of a thing where we are trying to see how the presentation goes. I had a glance to see few slides. So I don't want to spoil the suspense and the beauty of this presentation that Mr. Bhatnagar has. So let's just jump into this presentation, and I'll now request Professor Bhatnagar to initiate his presentation. But much before I do this, it's a little sad today that we don't have Dr. Arvind Ranade with us today. He had some compulsion at home, which he's trying to attend to. So I'll try to fill up in his absence. And please forgive me for the entire team of WIPNET Club and the team of NMCG if there is any mistake that I make in my presentation. So my apologies in advance. And now, without wasting any moment, I would now request and welcome Mr. Manu Bhatnagar. Sir, please take the stage and go ahead with your presentation. Mr. Manu Bhatnagar. My apologies. 1 second. Now that I'm so sorry, I could see I just missed out. Now that we also have our honorable DG of NMCG,
So we'll just take 2 minutes, Mr. Bhatnagar sir, if you allow us. We could hear Mr. Mishra's kind words, because it's always nice to hear you, sir. Thank you so much. I just, it's my pleasure to join you people because I got free from the Honorable Prime Minister's program and then some follow-up. Then I realized that this very important lecture is happening, and Mr. Bhatnagar, we are a kind of permanent beneficiary of his knowledge, and his organization is associated with us in so many ways. Whether it is natural heritage restoration, documentation, or architectural heritage, built heritage, or intellectual heritage. So we have several associations with him, and he's full of knowledge, very interesting facts he will tell you, and I'm quite sure it will be very useful. So primarily I won't take much time, but as you rightly said, today is a day of lot of satisfaction for our mission, because in Uttarakhand, almost all projects have got completed, and all major projects inaugurated by Honorable Prime Minister today. And Mr. Bhatnagar will be happy to know, and all of you also will be happy to know, that we have also, Honorable PM also inaugurated the first Ganga Museum of its kind on the bank of, in Haridwar, on the bank of Ganga, on Chandighat. So again, in that conceptualization, lots of help has come from the Wildlife Institute of India. I think one of the lecture you had, Dr. Ruchi Badola. So she and her team, Professor Hussain, several other people have helped us. We also got help from INTEC, from Mr. Bhatnagar for some of the panels. So I think a very nice cultural biodiversity angle, cultural angle, and also scientific things. We have also kept certain models of STPs, and we will keep on adding. So all these things have been put in that museum. And you know, Haridwar, so many people visit, and Kumbh is going to come. So I think it will be a very good place for people to visit and see that. So that also was inaugurated. We also launched, we have also released a very nice book, again from Wildlife Institute of India has produced very nice book which gives the kind of cultural as well as biodiversity profile, and the life of the river is reflected in that book. So I think several things have happened today. So I think it's a day of satisfaction, and it's very good coincidence that we are ending the day. In the evening we have got such interesting lecture and such a good good thing from Mr. Bhatnagar. So I think I won't take much time. Thank all of you, Vigyan Prasar, and all of you for consistently continuing this monthly lecture series. I'm quite sure it may be found useful by various science clubs and other people, and maybe sometime later it's also time for us to sit down and then look at some of the other activities, what all we can do. So sometime in October we can have our meeting also. So once again I welcome Mr. Bhatnagar from NMCG side from behalf of all of you, and also convey my best wishes to all the listeners. And let's all take a pledge on this important day, when so many projects we have done, to keep all our rivers clean, especially Ganga and all its tributaries, or wherever you are. All rivers are equally pious, equally holy, and we must protect each and every river. So I think that's the kind of message we should carry forward. I'm quite sure the rich heritage, rich cultural value, and other things which Mr. Bhatnagar will tell you will further reinforce this feeling that we must protect our rivers, we must conserve our rivers, and that's the kind of message or request I will like to make. Thank you. नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर. और सबसे अच्छी बात आपने जैसे कहा वो म्यूजियम स्टार्ट किया, तो मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स NCSM के साथ विज्ञान प्रसार कई वर्षों से जुड़ा है, और उस म्यूजियम के अंदर अगर आपकी आज्ञा होगी तो हम मिलके उसको और बड़ा और बेटर अपनी तरफ से जो प्रयास है वो करेंगे. और मैं AD चौधरी जी जो DG हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इसके अंदर अगर कुछ योगदान और कुछ सहयोग बना के दे सकें. और उनके पास बहुत क्यूरेटर्स हैं, हमारे पास देहरादून में काफी बड़ा सेंटर है, दिल्ली में है, वहां से भी कुछ मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है. रही बात पुस्तक की, जो पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, उस पुस्तक की अगर प्रति आप भेजेंगे तो हमारा नवंबर का जो आने वाला इशू है ड्रीम 2047 का, जिसकी करीब 36,000 सब्सक्रिप्शन है, उसमें हम उस किताब का रिव्यू भी और उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे.
ताकि ये प्रयास भी आपका लोगों तक पहुंचे, और बहुत अच्छा रहा। आप बधाई के पात्र, और आप हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरे एनएमसीजी की टीम को कि आपने ये उपलब्धियां आज हासिल करी। और वाकई में बहुत अच्छा दिन है जहां भटनागर साहब हमारे साथ जुड़े, और आज का संभाषण उनकी तरफ से। तो बिना और कोई वक्त जाया किए भटनागर साहब, क्षमा चाहता हूँ, हम लोग जैसे मिश्रा जी को देखते हैं तो हम लोग वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड, सो बिकॉज व्हेनेवर ही स्पीक्स वॉल्यूम्स, एंड सो एनीवे, so with this, over to Mr. Bhatnagar. Welcome, Mr. Manu Bhatnagar. Thank you, Mr. Parashar. I'm very happy to be able to share what little I know. I've been given 20 minutes, and that is a short time. The material which can be presented can probably go on for 3 or 4 times that period. So I have to be very choosy as to present, what can be done in this short while. We are speaking to students of the science clubs. Now, what I'm going to tell is not pure science. For pure science, there are other experts. But whatever I will say will certainly touch upon scientific and engineering aspects of the river. So, may we go on to the first slide? So, first thing which I would like to tell our students, Parashar Sahab, should I speak only in English? Should I speak in a mixed language? सर आप मिक्स बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। और हाँ, क्योंकि शायद तो जो गंगा नदी है वो हिंदुस्तान की शायद सबसे लंबी नदी है। इसकी जो पूरी लंबाई है ये 2525 किलोमीटर की है, और ये करीब 50 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जनपद के थ्रू ये बहती हुई निकलती है। इसका उद्गम जो है, ओरिजिन जो है वो गंगोत्री पे है, और ये हमारे हिमालय माउंटेन्स में है। धीरे धीरे नदी नीचे आती है और हरिद्वार पे ये मैदानी इलाकों में यानी प्लेन्स एरियाज में फ्लो करने लगती है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाती है बंगाल में, ये जो आप नीले डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, और वहां से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है टुवर्ड साउथ, और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो नेक्स्ट प्लीज। अभी आपने जो नक्शा देखा ये बड़ा एक्यूरेट नक्शा है, सही नक्शा है, मगर हमेशा ऐसे नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि नदी कहाँ से कहाँ जाती है, और बहुत कोशिशें हुई। पुराने ज्योग्राफर्स जो भूगोल के विशेषज्ञ थे, उन लोग ने मैप्स बनाए, नक्शे बनाए, अपनी जो भी उनके पास ज्ञान था, जो इधर उधर से बात करके पता लगता था। तो धीरे धीरे जो है जैसे शताब्दियां आगे बढ़ती गई और ज्ञान बढ़ता गया, तो नक्शे जो है ज्यादा एक्यूरेट होते रहे। अब ये जो है दूसरी शताब्दी का नक्शा है। आगे बढ़िए। उसके बाद फिर और कोशिश की गई, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होने लगे नक्शे, और फिर और आगे आइए। ये 1786 एडी में मेजर जेम्स रेनेल ने पहली बार नक्शा बनाया सर्वे करके, जिसमें गंगा जो है, पहाड़ी इलाका तो वो नहीं दिखा पाए, मगर बंगाल और उत्तर प्रदेश, उस वक्त उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस था, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस इलाके का नक्शा काफी एक्यूरेट बन गया। तो धीरे धीरे पता लगने लगा कि नदी की पूरी लंबाई क्या है, कहाँ से ये निकलती है, और ये नक्शे जो हैं अब जाके बिल्कुल एक्यूरेट हो गए हैं। नेक्स्ट। वैज्ञानिक इस नदी के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या चीजों पे वो विश्लेषण करते हैं। तो एक तो है फ्लो यानी बहाव, कितना पानी इस नदी में बहता है, और वो जो है साल में फर्क मौसम में, डिफरेंट सीजन्स में ये फ्लो जो है वेरी करता है। आपको पता है कि मॉनसून में नदी में फ्लड आ जाता है, नदी बहुत चौड़ी हो जाती है, मतलब मैदानी इलाकों में, बिहार वगैरह में
7 7 8 8 किलोमीटर चौड़ा इलाका जो है वो नदी के नीचे चला जाता है। मगर वही नदी जो है, जैसे बरसातें खत्म होती हैं आफ्टर द मॉनसून, नदी सुकड़ जाती है, रिवर श्रिंक्स, और वही नदी जो है वो 300-400 मीटर चौड़ी, ज्यादा 1 किलोमीटर कहीं कहीं पे चौड़ाई रह जाती है। तो ये चीज जो है हमारे को जानना बड़ा जरूरी रहता है कि भाई कितना फैलाव होगा नदी का, तो उतना इलाका जो है वो नदी के लिए रखना चाहिए, ना कि उस इलाके में हम लोग इमारतें बना दें, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, दे शुड नॉट कम इन द वे ऑफ द रिवर, otherwise those buildings will all get damaged. दूसरा इलाका जो है, दूसरा जो हमारा विषय है वो है ग्लेशियर्स, यानी कि जो बर्फीले चट्टाने हैं हिमालय में, जहाँ से नदी निकलती है। आपको पता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से नदी बहना शुरू होती है। और ये इसमें भी एक बताने की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हमारे उत्तरी इलाके हैं, तो यहाँ पे नदियां जो हैं ये स्नो फेड रिवर्स कहते हैं। स्नो फेड रिवर्स यानी बर्फीले इलाकों से जो नदियां निकलती हैं ये सारे साल बहती हैं। और जो हमारे जो डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो वगैरह वाली नदियां जो हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, जो स्प्रिंग से निकलती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हैं ये इन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं इनकी बर्फ जो है कम होती जा रही है। क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस वजह से ये फर्क पड़ रहा है। एक और चीज जो हमें जानने की जरूरत है कि जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि भूमिगत पानी जो है, ये जो है इसका बहाव जो है जमीन के नीचे, ये भी नदी में जाता है, और इस पानी से नदी जो है वो गर्मी के मौसम में उसमें बहाव रहता है। सो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड समर फ्लो ऑफ द रिवर। फिर आ गए हम पोल्यूशन पे। पोल्यूशन आपको पता है, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी की वजह से लोगों ने नदियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। तो पोल्यूशन जो है इसकी वजह क्या है, अब तक आप सब जानते हैं, और वो है कि हमारे शहरों का जो मल है वो सब नदी में जाता रहा है बिना किसी ट्रीटमेंट के, और इसकी वजह से नदी की जो वाटर क्वालिटी है उसमें जो ऑक्सीजन है वो बड़ी कम हो गई, और बदबू आने लगी, पानी काला होने लगा, मछलियां जो हैं वो छोटी हो गई, मछलियों की तादाद कम हो गई। तो इसको नापने का बहुत काम हुआ, CPCB वगैरह से, और भी संगठन थे, उन लोग ने ये नापा, यूनिवर्सिटीज ने नापा, इसमें पानी में ऑक्सीजन कितनी है, पानी में ये जो आपका सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब नापना शुरू हो गया। सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, ये सब कितना है। तो इसके लिए भी बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी लैबोरेटरीज, ये सब इस्टेब्लिश की गई, और अब हमें काफी अच्छा आइडिया है कि कहाँ पर नदी में पोल्यूशन है और कहाँ पे नहीं है। तो खास तौर पे जहाँ पर कोई शहर है और उस शहर में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उतने, तो नदी जो है वहाँ पर बहुत गंदी हो जाती है। और धीरे धीरे इस पर भी काम हो रहा है, और उम्मीद है अगले कुछ सालों में हम पोल्यूशन की समस्या से आगे बढ़ पाएंगे। एक और जो विषय है नदी के बारे में है, उसमें जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। तो आप सब जानते हैं कि कोई डॉल्फिन जो है, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल बन गया है, वो गंगा नदी का एक बहुत अहम जीव है, मगर उसके अलावा और भी हैं, और ये जो है नदी को साफ भी रखते हैं, और इनकी वजह से हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन यानी फूड वगैरह भी मिलता है। सेडिमेंट यानी कि जो बहाव के साथ मट्टी आती है, तो बरसातों में आप देखते होंगे कि गंगा जो है वो रंग में जरा मटमैली सी हो जाती है। वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि जोरों के बहाव में बारिश जो है वो बहुत मट्टी जो है वो खींच के लाती है,
और वो मट्टी जो है धीरे धीरे नदी के बेड पे, नदी के जो तल है उस पर धीरे धीरे बैठने लगती है, और इसकी वजह से नदी में कई जगह छोटे छोटे टापू भी बन जाते हैं। फिर एक और विषय है, और वो है डेप्थ, यानी गहराई कितनी है पानी की। ये भी जानना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस पर नाव चलानी है, बड़ी नाव चलानी है खास तौर पे, तो उसके लिए एक गहराई चाहिए, और कहाँ पर कितनी गहराई है ये जानना बड़ा जरूरी है। और वो बरसातों में ही नहीं, जब पानी कम हो जाता है गर्मियों में, तब कितनी गहराई रह जाती है। तो ये मोटे मोटे विषय हैं जिसपे साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। आगे आपने ज्यादा कर दिया। हाँ, अब ये जो नक्शा है ये अपर गंगा रीजन का है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर लिखा होगा टेहरी डैम, मगर टेहरी डैम तो बहुत हाल में बना है। अगर आप थोड़ा सा नीचे चलें इसके, तो आप देखेंगे भीमगोड़ा बराज। भीमगोड़ा बराज जो है 1854 में पूरा हुआ था। दोबारा कह रहा हूं, 1854 में पूरा हुआ था। और यहाँ से ये कैनाल जब बराज बना, बराज से कैनाल निकले, और वो कैनाल की वजह से पानी जो है नदी में से काफी हद तक पानी निकाल के सिंचाई के लिए वो अपर गंगा कैनाल के थ्रू कई खेतों के लिए ले जाया गया। ये एक पुरानी फोटो है अपर गंगा कैनाल की। ये जो है ये ऐसे जगह की फोटो है जहां पर जो वो कैनाल है वो एक और नदी के ऊपर से निकल रहा है, यानी कि नीचे जो है वो सोलानी नदी निकल रही है और ऊपर से गंगा कैनाल बह रहा है। तो इंजीनियरिंग के व्यू पॉइंट से ये एक बहुत बड़ी फीट थी। मतलब बहुत से लोग दुनिया भर से इसको देखने आए कि भाई ये काम कैसे हुआ है। आगे चलिए। और इसकी ये कैनाल के दृश्य हैं, और ये जो नीचे ये शेर बना है वो उस जगह बना है जहां पर वो कैनाल शुरू होता है। जो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे रुड़की जो जगह है, रुड़की शहर है, रुड़की शहर में थॉमसन कॉलेज खुल गया जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, और वहां पर सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू हुई। और इसीलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम हो रहा था, तो वहां पे इंडस्ट्री लग गई, उद्योग लग गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का, नापने की इंस्ट्रूमेंट्स का। और धीरे धीरे थॉमसन कॉलेज जो है वो बढ़ते बढ़ते वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बन गया, और यहीं से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स निकले जो इस देश की आगे जाके ये इरिगेशन और डैम्स के काम में जुट गए। नेक्स्ट। मगर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो हम लोग ने बहुत सारे डैम्स और बराजेस बनाने शुरू कर दिए नदी पे, बिना सोचे कि नदी में भी पानी रहना चाहिए। तो ये एक हम लोग ने नक्शा बनाया जिसमें एक एक बांध, एक एक बराज, एक एक वियर, वो सब दिखाया हुआ है। ऑल डैम्स, बराजेस, वेयर्स एंड इकट्स जो गंगा बेसिन में हैं वो हमने इसमें दर्शाए हैं। इस वक्त ये जितने भी लाल बिंदु आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट वन स्ट्रक्चर, एंड दिस number shown over here is 1000. So at 1000 places we are removing water from the Ganga river or the Ganga river tributaries, and still we are planning for another 400 structures. तो अब वो समय आ गया है कि हमें सोचना है कि हमें नदियों में भी पानी छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम सारा पानी निकाल लें, क्योंकि अगर आप सारा पानी निकाल लेंगे तो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी नदी जो है हमको बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अगर नदी में पानी सूख गया तो जितनी भी जैव विविधता है, जो उसमें मछली है, टर्टल है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, वो कहाँ जाएगा? वो सब खत्म हो जाएंगे। और
जो वो नदी जो है जमीनी पानी भरती है वो खत्म हो जाएगा। बहुत से इकोसिस्टम क्लाइमेट पे यानी मौसम पे भी उसका असर पड़ेगा। तो ये अब बहुत बड़ी एक जो क्लाइमेट चेंज की साइंस है उसमें डैम्स का भी बड़ा रोल है कि वो रोल अब कम होना चाहिए। आगे ये देखिए, ये है गौमुख। गौमुख वो स्थान है पहाड़ों में, बिल्कुल हिमालय में ऊपर, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी के पीछे मतलब आप देख सकते हैं ऊपर दो आपको बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। आप इनका नाम सोचिए क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि भाई गंगा की क्या कहानी थी, भागीरथी का कितना उसमें रोल था गंगा को अपनी तपस्या से धरती पे उतारने का। गंगोत्री का मतलब है गंगा उतरी, इससे वो शब्द बना गंगोत्री। और आप देख रहे हैं कि पीछे जो भागीरथी, ये ट्विन भागीरथी पीक हैं जो उसके ऊपर वॉच रख रहे हैं गौमुख पे। अच्छा, जहां ये आपको गौमुख देख रहा है इसके पीछे जो थोड़ा मट्टी से ढका हुआ इलाका है, ये मट्टी से ढका जरूर है मगर ये पूरा बर्फ है। ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। मगर ये ग्लेशियर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे पीछे हट रहा है और कई जगह निशान लगे हुए हैं कि भाई इस साल में ग्लेशियर यहाँ तक था, अब इतना पीछे आ गया और पीछे चला गया। तो अगर ग्लेशियर हमारे छोटे हो जाएंगे तो नदी में पानी खासतौर पे गर्मी में और कम हो जाएगा, तो ये बड़े खतरे की बात हो सकती है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये ग्लेशियर के ऊपर से फोटो है और ये पूरी एक किस्म से इसको आकाशगंगा कहते हैं। और इस पे एंड पे आके हमारे ये बाएं हाथ की तरफ ये नीचे गौमुख है। आगे पहाड़ी इलाकों में ये देखिए बहुत सारे ये छोटे ग्लेशियर लेक्स हैं, टार्न्स। इनको मतलब ये बर्फ के पिघलने से ये छोटी छोटी बिल्कुल क्लियर लेक्स बन जाती हैं। इसमें आप एक सिक्का भी डालें, इफ यू प्लेस अ कॉइन इन दिस यू कैन सी राइट टू द बॉटम। इनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी बड़ी कम है क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है यहाँ पे, तो इसमें आपको कोई मतलब काई नहीं मिलेगी। इसमें वैसे आपको कोई मछली भी नहीं मिलेगी क्योंकि मछली को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ऐसी ये ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी भी होती हैं। नेक्स्ट, और ये देखिए ये नदी बह रही है, गंगा नदी भागीरथी। भागीरथी गंगा में तब तब्दील होती है, गंगा भागीरथी बिकम्स गंगा व्हेन अलकनंदा joins Bhagirathi at Devprayag. The combined rivers are known then as Ganga. Before that it is Bhagirathi. वापस आ जा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए जैसे सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो नदी जो है ऊपर से बर्फ बन जाती है और नीचे उसके पानी बह रहा है। तो ये इसके आप नदी के ऊपर से चल भी सकते हैं और इनको स्नो ब्रिजेस कहते हैं। नेक्स्ट, और ये जो है ऊपर के इलाकों में बहुत सारे आपको पशु भी मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ। ये ब्लू शीप है जिसको भराल कहते हैं। तो ये जरा मतलब स्नो लाइन से नीचे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा इनको पौधे और हरा मटेरियल, ग्रीन मटेरियल मिलता है इनके खाने के लिए, क्योंकि ये हर्बीवोरस है, वेजिटेरियन कह लीजिए। नेक्स्ट, ये देखिए ये कौवा नहीं है, इसकी बीक जो है, जो चोंच है आप देखिए, इट्स येलो, तो इसको चाउ कहते हैं, चाउ। तो ये भी वहां पे उस इलाके में मिलता है। आगे ये है पीका। पीका जो है दिस इज अ स्मॉल रोडेंट। अब ये जो रोडेंट फैमिली है जिसमें चूहे होते हैं, तो ये पीका वहां पे रहता है। पीका से एक बड़ा जानवर भी है, मारमोट। मारमोट भी एक रोडेंट है मगर वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट, ये जो है भोजपत्र ट्री है। भोजपत्र ट्री जो है इसका जो छाल है, द बार्क ऑफ दिस ट्री, इंग्लिश में ये बर्च कहते हैं, बर्च। और ये इसका जो बार्क है, जो इसकी छाल है,
वो जो है पुरानी पुस्तकें जो आपके वेद, उपनिषद, पुराण, वो इन सब पे लिखे जाते थे। आज की तारीख में ये पेड़ों की गिनती बहुत कम हो गई है और हम लोग एक प्रोजेक्ट करने के उसमें हैं जिसमें कि हम लोग उस इलाके में ये भोज पत्र पेड़ जो हैं इनकी तादाद बढ़ाएंगे, इनको लगाएंगे ताकि ये दोबारा हमारे पास मौजूद हो। इनकी छाल वगैरह से दवाएं भी बनती हैं, तो ये केवल लिखने के ही काम नहीं आता, इसकी छाल से और इसके टहनियों से ऊपरी इलाकों में छतें भी बनाई जाती हैं मकानों की। नेक्स्ट, ये हरिद्वार के पास है झिलमिल वेटलैंड्स। झिलमिल वेटलैंड्स जो हैं ये वो इलाका है जो गर्मियों में सूखा होता है और बरसातों में जो है ये इस पे पानी आ जाता है। तो ये जो है अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है स्पॉटेड डियर आते हैं। जो ये स्पॉटेड डियर जो हैं वो नदी में जो टापू से बन जाते हैं उन पे से चलते चलते वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाते हैं। नेक्स्ट, तरह तरह की आपको ये पक्षी मिलेंगे। आप जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आएंगे तो जो जैव विविधता है वो बदलती जाएगी। नेक्स्ट, और ये है देखिए वो डॉल्फिन। डॉल्फिन को आम भाषा में सूसू कहते हैं। सूसू, सूसू क्यों कहते हैं? सूसू इसलिए कहते हैं जो इसके सांस लेने की जो आवाज आती है इस तरीके से, इसलिए उसको सूसू कहते हैं। और ये डॉल्फिन आपको शायद हैरानगी होगी जान के कि ये एक अंधा जानवर है, ये देख नहीं सकता, बहुत ही धुंधले सी इसको नजर आता है, मगर ये इसलिए बड़े आराम से पानी में चलता है क्योंकि ये सोनार बेस्ड है। सोनार यानी कि जो ये तरंगे हैं साउंड की, ध्वनि की, वो ये आगे फेंकता, बिल्कुल जैसे रडार काम करता है, और अगर कोई अड़चन आती है तो वो तरंग वापस इसके पास आती है और इसको पता लग जाता है कि आगे कोई अड़चन है। तो ये जो है डॉल्फिन जो है ये आदमियों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है और बहुत बल्कि दोस्ताना रवैया होता है इनका। ये जो यहाँ तक कि हमने ये देखा कि जो बाबर बादशाह थे, बाबर बादशाह के टाइम में भी उन्होंने जो अपनी किताब लिखी, बाबर जो थे वो वाइल्ड लाइफ के बड़े चहेते थे, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और उन्होंने इसको जो है ऑब्जर्व किया डॉल्फिन को। नेक्स्ट, हिल्सा जो है एक बहुत मशहूर मछली है जो बंगाल में और बांग्लादेश में बहुत टेस्टी डिश मानी जाती है और ये नदी में मिलती है। जब फरक्का बराज बन गया तो हिल्सा जो है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती थी, बराज की वजह से एक रास्ते में रुकावट आ गई। तो मछली जो है ये माइग्रेट भी करती हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके जाती हैं, खास तौर पे अपने अंडे देने के लिए, और अगर वो नहीं जा पाएंगी तो इनकी जो पॉपुलेशन है, देयर पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस्ड, खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अब उसका जो है ये सोचा जा रहा है क्या किया जाए। तो पहले जो है बराज बना, अब ये सोचा जा रहा है कि इलाज क्या है। नेक्स्ट, जो अपर रीचेस हैं हिमालय वाली साइड पे देखिए, ये है गोल्डन महासीर। गोल्डन महासीर जो है ये स्पोर्ट्स फिश है, बहुत ही इसको लोग पसंद करते हैं, मगर ये जो है पुरानी फोटो हैं, आज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब यही मछली जो है आपके एक हाथ के बराबर नहीं होगी। तो ये जो है इस वजह से है क्योंकि वो मैंने आपको जो नक्शा दिखाया जिसमें हजारों डैम बने हुए हैं, तो मछली जो है वो ब्रीड नहीं कर पा रही है, और पानी भी मतलब क्योंकि नदी से निकाल लिया जाता है ये डैम्स पे, तो उसके बाद बहुत सा हिस्सा सूखा रह जाता है। तो जब सूखा होगा तो मछली कहाँ से जिंदा रहेगी? मछली तो पानी में रहती है ना, और वो अपनी ऑक्सीजन जो है
ये जो गिल्स हैं जो आप देख रहे हैं ना, इस आदमी के दाएं हाथ के साथ नीचे लटका हुआ है, एक नीचे है और एक ऊपर की तरफ, इन्हें गिल्स कहते हैं। गिल्स के थ्रू ये जो है पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं। मगर अगर आपका पानी प्रदूषित होगा, प्रदूषित पानी में आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लो इन पोल्यूटेड वाटर्स। तो पोल्यूटेड वाटर्स में आप कैसे, मतलब मछली जो है वो, उसकी जब ऑक्सीजन ही कम आएगी उसको, तो उसकी ग्रोथ, उसकी पॉपुलेशन, उसकी ब्रीडिंग, हर चीज पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो है बहुत सारे जो पशु पक्षी और इंसेक्ट्स जो मिलते हैं, टर्टल्स जो हैं कई किस्म के मिलते हैं गंगा के आसपास। ये जो है आपका नीचे वाले में देखिए फोटोग्राफ राइट वाली, और वो है घड़ियाल। तो जो हिंदुस्तान में जो है गंगा पे और नदियों पे भी मैदानी इलाकों में आपको घड़ियाल भी मिलेगा और आपको ये मगरमच्छ भी मिलेगा। मगरमच्छ जरा ज्यादा बड़ा होता है और घड़ियाल छोटा होता है। घड़ियाल जो है वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। द घड़ियाल विच इज एलिगेटर, इट डजंट हार्म ह्यूमंस। मगर क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ, वो उसके जरा नजदीक जाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारे जो प्रोजेक्ट था उसमें ये टेंट टर्टल कहते हैं से, जो इसका मतलब ऊपर शेल है वो एक तंबू की तरह है, तो इसको टेंट टर्टल कहते हैं। और ऐसे ही ये कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प मछली। अब आप देख सकते हैं कहाँ मासीर का कितना साइज था और ये कितना छोटे छोटे साइज की हैं। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट पे गए, लोगों से बात की, तो उन लोग ने हमें ये बताया कि अब पहले दिन में 1 घंटा बैठते थे तो मतलब उनका जो है दिन की कमाई पूरी हो जाती थी, और अब सारा दिन बैठ लो तो इतनी मछली नहीं मिलती कि रोजी रोटी आराम से निकले। नेक्स्ट, और ये देखिए, ये है रिवर शार्क, इंडियन रिवर शार्क। आप लोग ने डॉल्फिन तो बहुत सुनी, मगर इंडियन रिवर शार्क पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है वो बंगाल की तरफ मिलती है, इंडियन रिवर शार्क। इसके दांत बहुत तेज हैं और ये जो है ये आराम से पकड़ में नहीं आती। नेक्स्ट, ये मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, एन अकाउंट ऑफ द फिशेस फाउंड इन द रिवर गेंजेस एंड इट्स ब्रांचेस। ये फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी थी 1822 में। उन्होंने जो है इसमें बहुत सारी मछलियों और टर्टल्स के डिस्क्रिप्शंस भी दिए और उनके स्केच बनाए, हाथ से स्केच बनाए, क्योंकि उस वक्त कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं। और आप देखिए कितनी मेहनत से इतनी एक्यूरेट ड्राइंग्स हैं। और ये 1822 की किताब है। इसका एक ही ओरिजिनल वॉल्यूम भागलपुर यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग तो आजकल बहुत सुन ही रहे होंगे कि भाई कैसे बरसाती पानी को हम लोग जगह जगह पे रोक के अपने टैंक्स भरें या जमीनी पानी में डालें ताकि पानी की समस्या कम हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रृंगावेरापुरा। ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास है, क्लोज टू इलाहाबाद, अराउंड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम इलाहाबाद सिटी। तो ये 1st सेंचुरी BC का बना हुआ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें जो है जब पानी बारिश नदी में बहुत पानी आ जाता था, तो ये जो है साथ में इन्होंने बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनाए हुए थे। उन टैंक्स में पानी एक टैंक से दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में, और ज्यादा पानी आ जाए तो वो नदी में वापस चला जाता था। तो इस तरीके से वो टैंक्स में मट्टी बैठ जाती थी और आखिरी टैंक में बिल्कुल साफ पानी मिलता था। तो हमारे पूर्वज जो थे, आवर एंसेस्टर्स वर वेरी knowledgeable अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड अबाउट वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट, ये उसका गूगल फोटो है, मगर इससे आगे मैं आपको असली फोटो दिखाता हूँ आगे। ये जो है, ये देखिए, ये वो टैंक्स के स्ट्रक्चर्स हैं, तो आज भी मौजूद हैं। और ये
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इनका देखभाल कर रही है। नेक्स्ट, जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे नदियों में टापू बन जाते हैं, यानी कि पानी का बहाव जो है वो पार्ट हो जाता है और वो दो स्ट्रीम्स में चलने लगता है, तो बीच का जगह जो है वो टापू बन जाती है। और ऐसे कई टापू हमें मिलते हैं और इन पे आपको खेती भी मिलेगी और जंगली जानवर भी मिलेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि भाई इन टापुओं को अब, क्योंकि जो हमारे बैंक्स हैं, शोर्स हैं, मतलब किनारे हैं, वहां पे तो कोई वाइल्ड लाइफ के लिए जगह हमने छोड़ी नहीं है, तो बेहतर ये है कि ये जो टापू हैं इनको केवल वाइल्ड लाइफ के लिए हम रिजर्व कर दें। तो ये टापू जो हैं कई जगह बहुत बड़े बड़े हैं, ये इलाहाबाद पे है, ऐसे ही आपको पटना पे रघोपुर दियारा मिलेगा, दियारा कहते हैं इनको। आगे ये कुछ फोटो हैं जो ये दियारों की हैं। ये रेवातवर का रेता है आइलैंड। नेक्स्ट, अच्छा, अब क्या है कि ये काहलगांव जगह है भागलपुर के पास, बिहार में भागलपुर के पास काहलगांव। और इसमें आप, ये गूगल नक्शा है सैटेलाइट से, इसमें आप बाएं हाथ को देख रहे हैं, एक टापू है नदी के बीच में, और इस टापू पे जो है ये बाबा जी का मंदिर है। ऐसे 3 टापू हैं वहां पर। मगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये टापुओं पे मंदिर बने कैसे? सच बात तो ये है दैट ओरिजिनली रिवर डिड नॉट फ्लो ओवर हियर। तो ये पहाड़ियां थी और ये पहाड़ियों पे मंदिर बनाए गए। बाद में जो है नदी शिफ्ट हो गई, उसका रास्ता जो है नदी ने अपना बदल लिया और नदी जो है इन पहाड़ियों के आजू बाजू से बहने लगी। सो वंस द रिवर चेंज इट्स कोर्स, these hillocks, these rocky hillocks, they became islands in the river. Next, तो अब आप इन मंदिरों पे जो है ये आप केवल नाव से जा सकते हैं। नेक्स्ट, और फिर आप देखेंगे कि क्योंकि नदी जो है बहुत खास तौर पे मॉनसून में, इन मॉनसून रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, और जब वो वापस सुकड़ती है, वंस द रिवर ड्राइज अगेन, तो बहुत सारा पानी जो है वो ये साथ में छोड़ जाती है और ये इनको फ्लड प्लेन लेक्स कहते हैं, ऑक्सबो लेक्स, यानी कि ये धनुष के शेप में होती हैं, इसलिए ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, तो ये आप नीचे देख रहे हैं ना, जैसे ये घूमती हुई लेक्स आपको नजर आ रही हैं, तो जो नीचे आपको दिख रही है लेफ्ट पे, दैट इज 10 किलोमीटर्स लॉन्ग, ओके, एंड जो राइट पे है दैट इज 8 किलोमीटर्स लॉन्ग। सो ऑल अलोंग द रिवर यू विल फाइंड दीज ऑक्सबो लेक्स, एंड इनमें जो पानी भर जाता है वो बाद में रिस के वापस नदी में आता है गर्मियों में, उस पानी की वजह से नदी बहती रहती है। इसलिए जो ये लेक्स को जो है, ये जो हमारी ऑक्सबो लेक्स हैं, इन सबको हमें बड़ा बचा के रखना है। नेक्स्ट, फिर से वापस जा रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, ये देखिए, ये वही भागलपुर के जो टापू थे, ये उसकी ये एक पेंटिंग है। देखिए नीचे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या डेट है? 1804 की ये वाटर कलर पेंटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो बीच में टापू है, और 1824 है। तो और कैसे कैसे जो है किस किस किस्म की नावें चल रही हैं नदी में। तो मतलब ये आप देख रहे हैं, जो बाएं हाथ को है ये सेल बोट्स चल रही हैं, जिनमें जो है वो सेल्स लगे हुए हैं, और जो नीचे आप देख रहे हैं दाएं हाथ की, इसमें लोग चप्पू चला के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो चप्पू चलाने वाले हैं ये नदी के अपस्ट्रीम, यानी नदी के बहाव के विरुद्ध चल रहे हैं, और जो सेल वाले हैं ये जो है नदी के बहाव के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट,
अच्छा, जहाँ तेजी से जब पानी बहता है मॉनसून में, आप देखेंगे ऐसे नदी जो है अपने किनारों को काटती है और ऐसे जो है उसका रास्ता धीरे धीरे बदलता जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन किसानों की जमीनें यहाँ ऊपर हैं, जब वो कट जाएंगी तो उनका क्या होगा, तो वो बिना जमीन के रह जाएंगे। नेक्स्ट, ये और कुछ फोटोग्राफ्स हैं कटान की। नेक्स्ट, तो ये कटान को रोकने के लिए जो सॉइल इरोजन, बैंक इरोजन कहते हैं इसको, तो ये हमारे इंजीनियर्स ने ये एक तरीका निकाला है जिसमें ये बोरियां हैं, जियो ट्यूब्स कहते हैं, ये प्लास्टिक की बोरियां हैं और इनमें रेत वगैरह भर के ये मट्टी के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वहां से कटान ना हो। मगर जो हमने देखा, वो जब जोर से पानी आता है तो बहुत सारे ये बोरे जो हैं ये सब बह जाते हैं और हर साल जो है फिर वही काम करना पड़ता है। मगर इसका एक इलाज है जो प्रकृति ने हमको दिया है, नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल इरोजन, जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाइए। ये देखिए, जो नदी के किनारों पे कई जगह अक्सर आपको ये घास मिलेंगी, राइपेरियन ग्रासेस, जो जैसे सरकंडा कहते हैं, सरपट कहते हैं, मूंज कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ और नाम मिलेगा आपको। और घास की जो प्रजातियां हैं वो जरा जरा सी फर्क होंगी, मगर ये घास जो है इनकी जो जड़ों का जो सिस्टम है वो मट्टी को बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है और ये जो है प्रकृति काम वो खुद कर देती है। तो अगर हम चाहें वो बोरियां लगाने की बजाय अगर हम एक बारी घास लगा दें, ये जो राइपेरियन ग्रास है, तो हमारा किनारा जो है वो कटेगा नहीं। नेक्स्ट, और ये कई, मैंने आपको बताया कई प्रजातियां हैं घास की राइपेरियन एरियाज में, और इनमें जो है ये तरह तरह के जीव जंतु भी रहते हैं, यानी कि ये हैबिटेट्स भी हैं। इनसे जो है वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं दवाइयाँ भी बनाते हैं छोटी छोटी अपनी बीमारियों के लिए, फीवर हो, चोट लग जाए, बुखार हो रहा हो, उसका इलाज वो खुद ही इन जड़ी बूटियों से कर लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कई नाम है, अब जैसे ये वाली घास का नाम है कांस, और वहाँ उधर नदी के किनारे वाले लोग जो हैं वो अपने छतों के छप्पर वगैरह जो हैं इन घासों से ही बना लेते हैं। नेक्स्ट, और ये इलाहाबाद में जो है ये मूंज ग्रास होती है, तो मूंज ग्रास जो है उससे बहुत सारे ये वस्तुएं बनती हैं, टोकरियां, मैट्स और बैग्स, बहुत सुंदर काम होता है जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत आमदनी लाता है। नेक्स्ट, बहुत टाइम से नदी पे नाव चल रही हैं और अब मैं आपको बोट्स के एरिया में ले जा रहा हूँ। ये इसको जो है ये अंग्रेजों के टाइम में चलती थी, इसको बजरो कहते थे। बजरो में जो आगे बड़ी बोट है इसमें तो जो पैसेंजर्स हैं वो रहते थे, और इसके साथ पीछे एक छोटी बोट आप देखेंगे तो यहाँ पर उसमें उनका किचन चलता था, जो सेवक लोग थे वो वहां पे रहते थे। और ये बोट्स जो थी ये 3-3 महीना लेती थी कलकत्ते से इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए, और वो भी तब मतलब इलाहाबाद से आगे नहीं जा पाती थी ये बोट्स, क्योंकि ये जरा बड़ी थी, क्योंकि गर्मियों में पानी की गहराई उस वक्त इतनी नहीं रहती थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फिर स्टीमर्स चलाने शुरू किए और अब हम लोग भी स्टीमर्स उधर चला रहे हैं। ये डबल डेकर स्टीमर है और ये वहीं चल सकते हैं जहां गहराई काफी हो। नेक्स्ट, नाव बनाने वाले भी हैं नदी के किनारे, ये तरह तरह की लकड़ियों से ये नाव बनाते हैं और फिर नाव की जो नीचे की लकड़ी है इस पे कुछ ऐसा मटेरियल चढ़ाया जाता है जिससे पानी का असर लकड़ी पे बहुत कम हो। तो ये वो अपने डिजाइन से बनाते हैं ये बोट्स, और कई किस्म की बोट्स हमने देखी जो गंगा में चलती हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये बोट्स बन रही हैं। बोट बनाने वाले जो हैं
दाहिने तरफ आप अगर देखें तो एक पूजा हो रही है बोट को लॉन्च करने से पहले, बिफोर लॉन्चिंग द बोट इन द रिवर, उसकी पूजा की जाती है ताकि वो अपने मालिक के लिए, इट शुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब फायदे का सौदा रहे उसके मालिक के लिए और एक्सीडेंट्स में ना फंसे वो। नेक्स्ट। और धीरे धीरे समय के साथ जो है बोट्स की कंस्ट्रक्शन भी बदल रही है क्योंकि लकड़ी अब इतनी आसानी से नहीं मिल रही। तो ये आप देख रहे हैं कि बोट का नीचे का जो हिस्सा है वो GI शीट यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट से बना हुआ है। और ये जो है ये फर्रुखाबाद के इलाके में है। तो हर जगह आपको तरह तरह की डिफरेंट बोट्स नजर आ जाएंगी। नेक्स्ट। नदी के किनारे हमने बहुत सारे प्राचीन पेड़ भी देखे, वृक्ष जो हैं, और ये जो है आपको बाएं हाथ पे दिख रही है, ये एक अफ्रीकन बाओबाब ट्री है। बाओबाब, अफ्रीकन बाओबाब जो है ये प्रयागराज में है। और जो ये मतलब जितने भी ये प्राचीन पेड़ हैं इनके नीचे कुछ पूजा होती है या इनकी मान्यता रहती है। और ये वाला जो वृक्ष है बाओबाब, इसका नीचे अगर आप इसका गोल चक्कर लगाएं तो ये 50-60 फुट का है। ये हमने पूछा, मगर किसी यकीन से तो नहीं कह सकते, मगर हमें बताया गया कि ये 300-400 साल पुराना है। ऐसे हमें बहुत सारे पेड़ जगह जगह पे मिले। नेक्स्ट। ये इलाहाबाद में जो है अक्षय वट है जो हजारों साल पुराना माना जाता है और इसकी बहुत पूजा भी होती है। नेक्स्ट। ये और हैं, आगे बढ़िए। एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एस्पेक्ट, वो है ब्रिजेस का। तो पहाड़ों में जो है ये ब्रिज जो है बनाने की कला और इसकी इंजीनियरिंग ये काफी पुरानी है। और आप देखिए ये बहुत ही सुंदर भी हैं और बड़े विचित्र हैं। इनको आप ये विल्सन ब्रिज है भैरों घाटी पे जो अब गिर चुका है, मगर आप सोच सकते हैं कि इसको बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। नेक्स्ट। और धीरे धीरे जैसे पहाड़ों में सड़कें पहुंची तो ये 2-3 किस्म के पुल बने। इनकी इंजीनियरिंग जो है वो सारी बड़ी अच्छी तरह, इसकी कैलकुलेशंस वर बेस्ड ऑन फिजिक्स, ऑन दी वेरियस फोर्सेस, उनकी कैलकुलेशंस। ये जो है ये केबल स्टे ब्रिजेस कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े केबल स्टेड ब्रिजेस बनते हैं, मगर ये जो है ये 19वीं सदी के बने हुए पुल आज भी कामयाब है। नेक्स्ट। ये आप देखें, अब खैर धीरे धीरे उनको अबेंडन किया जा रहा है, छोड़ रहे हैं क्योंकि ये ट्रकों का भार नहीं ले सकते। तो कंक्रीट के ब्रिज बनने लगे हैं, मगर अभी भी वहाँ की जनता जो है वो अपने आसपास जाने के लिए ये केबल ब्रिजेस को इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट। ये एक पुराना गर्डर ब्रिज है लेफ्ट पे, राइट पे भी वही है। और आप सोच सकते हैं कैसे, मतलब इतने बड़ी बड़ी खाइयों के आर पार कैसे ये काम किए गए होंगे। नेक्स्ट। और ये हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता का, ये 1943 में पूरा किया गया और अपने जमाने में ये बहुत एक बड़ी इंजीनियरिंग फीट थी। दिस ब्रिज व्हिच वाज कंप्लीटेड इन 1943। सो ये एक बहुत बड़ी, मतलब इट वाज अ वेरी मेजर इंजीनियरिंग अकम्प्लिशमेंट। और इसकी आप चाहें तो कलकत्ता में आप इसकी ड्राइंग्स, इसकी कैलकुलेशंस, ये सब आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट। मेरे ख्याल से मैं काफी कुछ कह गया, कहने को तो बहुत है, मगर मेरे ख्याल से टाइम भी मैंने बहुत ले लिया। बहुत सी चीजें थी बताने को, और भी बताई जा सकती हैं, मगर मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर साहब। बड़ी रोचक यात्रा से आपने हम सबको लेके चले और आपने मुझे अलग अलग चीजें, नई नई चीजें बताई। और मैं अब डॉक्टर निधि श्रीवास्तव से आग्रह करूंगा कि इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव कम अक्रॉस, आवर व्यूअर्स वुड हैव, सो थोड़ा सा कुछ प्रश्न हम चाहेंगे सर आप अगर उनका जवाब हमारे श्रोताओं को और प्रतिभागियों को दे दें। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव।
Thank you, sir. Thank you, Bhatnagar, sir, for the wonderful presentation. We all get amazed to know about the diversified flora and fauna of River Ganga, as well as the incredible construction along the River Ganga. There are few questions, sir. The first question is from Mr. Chandra Mahanta. He wants to know that is there any medicinal property associated with River Ganga or the water of River Ganga? Yes. See, there is what is known as bacteriophage. Bacteriophage is a microbe which is found in the river, especially in the upper reaches. This bacteriophage gives a very special quality to Ganga River, which is unique to Ganga River. And no, pathogens are able to survive in the presence of the bacteriophage. Now, in 1875, English doctors, they carried out experiments and they found that the Ganga water would remain clean. In fact, British ships which sailed for England, they would carry Ganga water because Ganga water would remain pure because of this bacteriophage all the way on the journey to England. And even if diseased corpses, dead bodies were put in Ganga water, the nearby water would remain clean. So this is the special quality about Ganga water, that is the bacteriophage, and it is found mainly in the waters of the main river and especially in the upper reaches. So once we have removed the pollution from the river, we will find that Ganga water is very healthy. And in fact, you see, the reason behind all this Kanwad Yatra is that people would take water from the river and go back to their villages and put some of that water in their village wells and village ponds in order to get that medicinal property in the water bodies in their villages. Thank you so much, sir. The next question is from Mr. Gangaraju. That what steps are taken by the government to protect this endangered species of animals, birds, or fishes found in River Ganga? The government is taking steps slowly. First thing is removal of pollution. Once pollution is removed, then the water quality will become healthy. It will have more dissolved oxygen in it. And so a lot of the biodiversity, your fish, turtle, and so on, they will remain much more healthy because they can draw more oxygen. But there are other things the government needs to do. One is to increase the flow of water in the river. See, certain species of fish, they require a certain depth of water. Now, if that depth is not there, they will not survive, or they will not survive in a healthy population. Similarly, the removal of dams or making possible the movement of fish across the dams so that their migratory habits and their breeding habits are not disturbed. Once that is attained, then we will be able to have a healthy biodiversity in the river. So government needs to take these steps, and it is not easy to take all of them. It will take quite a long time. Sir, the next question is from the same field that Mr. Praveen wants to know that what steps at local level we can take to preserve these biodiversity in River Ganga. See, at local level, what will happen is that one is try not to throw garbage in the river. There is the municipalities have to work in order to prevent garbage from going in the river. In the non-city areas, you need to have those grasses which I spoke about, the riparian grasses along the banks, so that the wildlife can
especially amphibians. Amphibians, you understand, are those fauna which can be in water as well as on land. So they need all these terrestrial habitats in order to survive and sustain themselves. So if we can have those riparian grasses, so these are some of the kinds of things we can do. One can raise awareness about the protection of rivers by learning about rivers and then speaking to many people about what needs to be done, why the rivers are so important for us. Thank you so much, sir. There is just one last question from Mr. Badnath Mishra. He just want to ask that गंगा की महत्तम गहराई किस स्थान पर है और ये क्या क्रमशः बढ़ रही है या घट रही है? देखिए, जैसे जैसे आप जाते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक बड़ा सरल तरीका ये जानने का, देखिए जैसे हम हिमालय से आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से आगे नरोरा, बिजनौर, ये सब हम मैदानी इलाके में आते हैं, तो जो गहराई है वो कम होती है। और जैसे जैसे हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो और नदियां जो हैं जुड़ती जाती हैं गंगा से, जैसे मतलब नॉर्दर्न बैंक से, क्योंकि बहुत सारा पानी नेपाल से भी आता है, घाघरा, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, बहुत सी नदियां जो हैं ये आके जुड़ती हैं गंगा में, तो वहां पे पानी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तो उसकी गहराई बढ़ती जाती है। और जब हम हुगली में पहुंचते हैं कलकत्ते के करीब, तो वहां पर गहराई जो है 25-25 फुट मिल जाती है, और उस पे जो है आपके ये स्टीमर वगैरह चलते हैं। तो अब ये है कि स्टीमर जो है बहुत आगे नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे पटना में मेरा अपना तजुर्बा है, गर्मी में आपका जो गहराई है वो 7-8 फुट पानी होगी, मगर पटना में ही जो है वो 25 फुट पानी चढ़ जाएगा मानसून में। वाराणसी में आप घाट पे देखिए, अगर आप मई में जाएंगे तो आप देखें पानी कहाँ है, और अगर आप दीवार की तरफ घाट पे देखें तो आपको निशान पता लग जाएगा कहाँ सबसे ऊंचा पानी चल रहा था मानसून में। ठीक है ना। आप इलाहाबाद में किले की दीवार पे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि भाई सबसे ज्यादा गहराई कब होती है, मानसून में होती है। और वही आप देखेंगे आप गर्मी में, तो आप वहाँ नदी में खड़े हो जाएं तो पानी शायद जो है आपके मतलब घुटने से या जांघ तक ही आएगा। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving time to us and enlightening. समय समय पे गहराई जो है बढ़ती है, चढ़ती है, घटती है। Thank you, sir. Now at the end, if you want to conclude something and give some message to our listeners. देखिए, ऐसा है कि नदी जो है वो केवल बहता पानी नहीं है, और खास तौर पे गंगा के बारे में आपने एक गाना शायद सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो केवल बहता पानी। तो गंगा एक ऐसी नदी है जिसके साथ हमारी बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हैं, और अगर हम इसको साफ रखेंगे और इसमें पानी का फ्लो बरकरार रखेंगे, तो ये हमेशा हमारे जो सिविलाइजेशन है इसको ये नर्चर करेगी। मेरे ख्याल से ये दिस वुड बी द कंक्लूजन। बहुत अच्छा कहा भटनागर साहब आपने, और बड़ा रोचक विश्लेषण रहा, और खासकर बहुत सारी नई जानकारी मिली हमको, हमारे श्रोताओं को, और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ पे। खासकर जब आपने कहा कि स्टीमर के चलने से ये विदित हो जाता है कि पानी की मिनिमम गहराई 25-30 फुट है, और खासकर आप जैसे आर्किटेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग से भी काफ़ी जुड़े हैं, रहे हैं, प्लानिंग से बहुत जुड़े रहे, वहाँ से जब हमको ये सब सूचनाएं मिलती हैं तो इसलिए मन और एक विश्वास करता है कि हम एक बहुत अच्छे आज विषय विशेषज्ञ के साथ जुड़े, ऐसी जानकारी हमको मिली। और आपने खासकर जो शार्क की बात बताई, आपने बहुत सारे वृक्षों की बात बताई, वो सब हम सब के लिए बड़ी नायाब और बड़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी थी। तो इस सब के साथ मैं अब चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिक श्री सचिन नरवाड़िया जी अपना दायित्व पूरा करें, और हम जो एक वोट ऑफ थैंक्स हम लोग करते हैं उसका
दायित्व उनका रहता है। तो ओवर टू सचिन जी। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट क्योंकि पीयूष जी थ्रू आउट द सेशन हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं एक बार 2 शब्द उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें। मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैं बीच में बोल पड़ा। और एक तो सर मुझे आपकी इतने अच्छे आप भी कितने अच्छे वक्ता हैं, मुझे आपका सुनने में ही अच्छा लगता है सर। मुझे मन करता है कभी अभी ये सब कोरोना टाइम खत्म हो तो फिजिकली मीटिंग की जाए सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ तो जैसे कहते हैं कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। भटनागर जी के साथ आज हमारा संसर्ग हुआ, उनसे मुलाकात हुई, और हम तो चाहेंगे आने वाले समय में भटनागर जी का जो ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, उसको हमें और मिले। तो भटनागर सर, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे आपसे आग्रह करूंगा कि समय अगर आपको कभी मिले तो विज्ञान प्रसार नोएडा में, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे करीब 2400 विपनेट क्लब्स जिन्होंने आज आपको सुना, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो आपको और आपकी जानकारी से लाभान्वित होना चाहेंगे। तो ये एक हमारा अनुनय है आपके लिए, एक आग्रह है आपसे कि जब भी हम समय मिले तो पीयूष जी के माध्यम से हम आपके पास पुनः पहुंचेंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। पीयूष जी, आपको मैंने बीच में रोका, क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं सर, एक्चुअली में सर का जैसा जो नॉलेज था पूरा गंगा को गंगोत्री से लगाया गंगा सागर तक, बीइंग अ पार्ट ऑफ, हम जल्दी साइंस को ही टच देखते हैं हर चीज में, रिवर को देखते हैं तो उसकी साइंस कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, बट एक दूसरा नजरिया भी जो है, उसके कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है, उन सबका भी एक अच्छा खासा डेटाबेस है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डेटाबेस को भटनागर साहब ने इस डेटाबेस को उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जो आने वाले जो जितने रिसर्चर हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। वो सारे इंफॉर्मेशन को हम जीआईएस बेस्ड डैशबोर्ड पे और डेटाबेस में सारा हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरली क्या है, आने वाली जनरेशन अब बुक पढ़ना छोड़ करके वेब पेज पे पढ़ना शुरू कर रही है सारी चीजें। और जैसे ये सारे पुराने मैप्स हैं, जनरली क्या वो ये जो जितने सीनियर हमारे साइंटिस्ट हैं या जितने इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं, अब नए यंग जनरेशन उनसे जुड़ नहीं पाती है जी। इन लोग की जितनी इंफॉर्मेशन, अगर सारा डेटाबेस को अगर हम जीआईएस बेस्ड और वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वगैरह पे सारा हम अपलोड कर रहे हैं तो आने वाले कई और सालों तक ये इंफॉर्मेशन हमारी आगे प्रोसीड करेगी जी। तो सर का बहुत अच्छा एक रोल है कि हम लोगों ने कल्चरल मैपिंग सर से प्रोजेक्ट, उसके बारे में सर भी 2 लाइंस ऐड करेंगे आई थिंक। जी सर प्लीज। एक बच्चे का सवाल था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं कह पाया, मगर मैं उसमें थोड़ा सा इस वक्त जोड़ना चाहूंगा। ऐसे ख्याल आ गया मुझे कि हम लोग के प्रोजेक्ट में हमने देखा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो जाके गंगा में मिलती हैं और ये भी काफी बदहाल है जी। तो अब जैसे आप लोग ने सबने आप जानते हैं कि बनारस में 80 नदी है जी। अगर आप पुराने नक्शों को देखें तो 80 नदी लिखा है, मगर आज के जो नक्शे बन रहे हैं उसमें वो 80 नदी का नाम 80 नाला हो गया है जी। और उसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और पानी का जो है वो नदी में जा रहा है जी। तो जो बच्चे जो हैं बड़ी नदी पे शायद इतना काम ना कर पाए, मगर जो वहां पे छोटी छोटी नदियां, हमने वाराणसी में ये भी देखा कि कुछ छोटी नदियां जो है पुराने नक्शों में दर्शाई गई हैं और आज की डेट में वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं तो अगर जो है अपने इलाके के ये छोटी नदियों पे हम लोग ध्यान दें तो छोटी नदी अगर हेल्दी होगी तो बड़ी नदी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो अगर छोटी नदी पे बच्चे काम करें, उनको उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया। उसका कारण ये कि वाराणसी तो हम सब जानते ही हैं कि वरुणा प्लस 80, अगर मेरा विवेचना ठीक है तो, और खासकर जैसे आपने 80 के लिए कहा कि 80 एक नाला बन के रह गई है, और ऐसी जगह तमाम ऐसी नदियां हैं जहाँ पे छोटी छोटी नदियां हैं। मुझे याद है बचपन में, मेरा बचपन पंतनगर विश्वविद्यालय में गुजरा है, तो वहाँ पे छोटी छोटी नदियां हैं जो बरसाती नदियां होती हैं, और वो बरसात में काफी उनमें पानी आता है और काफी हरा भरा होता है। चूंकि वो तराई का इलाका था तो लगभग वर्ष भर उसके अंदर हरियाली रहती है और वो नदियां थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। बट अगर यही नदियां को अगर शहरों के अंदर, जैसे आपने कहा कि वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो ये हमारे जो विपनेट क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं, और खासकर जो गंगा जी के साथ जाके जुड़ती हैं, उनको अगर हम अभी से उस पर प्रयास करना शुरू करें तो भविष्य में जो नदियां जिनका भविष्य और
ब्लीक हो सकता है उसको अभी भी रिजुविनेट किया जा सकता है। बड़ा अच्छा प्रयास रहा सब। और पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, तो उस गुरु को जो माध्यम होता है, जो विषय विशेषज्ञ से मिलाता है, उसका विशेष धन्यवाद। और इस नोट पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जैसा आप कुछ कह रहे थे उसको कहें और कंप्लीट करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। सर पीयूष जी। सर मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जिस दिन निधि मैडम और सचिन सर और हमारे रानाडे सर जिस दिन मुझे परमिट करेंगे, लास्ट लेक्चर मैं लूंगा जिसमें सारा चीज बाइंड अप करके प्लस जो अपना वो सब्जेक्ट को मैं गंगा से जोड़ के लास्ट में करूंगा। उस दिन मैं ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज मैं सचिन सर को पीयूष जी वो तो लास्ट हम होने नहीं देंगे। उसका कारण ये है कि आपको अवश्य बीच बीच में अवश्य जरूर हम चाहेंगे कि आप बोलें, क्योंकि आप भी विषय विशेषज्ञ रहे। और रही बात इस क्रम की, तो जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा, महानिदेशक जी ने कहा कि अच्छा आपका प्रयास जिसके अंदर हम कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हैं, क्योंकि इससे इतने लोग लाभान्वित होते हैं। आप देखिए 2440 क्लब्स पूरे देश में भर के बैठ के सुनते हैं, तो उनके उसमें नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है। तो इसके अलावा भी आपका धन्यवाद, भटनागर जी का धन्यवाद। जी सर जी। तो इसके अलावा भी ये सारा हमारे भी पेज पे लाइव होता रहता है। आपके यूट्यूब लिंक जो है हमारे पेज पे भी लाइव होता है, तो इससे और हमारे व्यूअर ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत बढ़िया साहब। और दूसरी बात ये कि इंडिया साइंस जो हमारा इंडिया का पहला OTT चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उस पे भी इस वक्त लाइव चल रहा है। और हमेशा हर ट्यूसडे को ये लाइव रहता है। और विशेषकर मंथ के आखिर में ये जो हमारा नमामि गंगे के साथ जो हमारा लेक्चर होता है, इसकी व्यापकता और बढ़ जाती है। और आगे के क्रम में जो मुझे आएगा लेक्चर से, उसमें मैं एक्चुअली में धीरे धीरे साइंस में बढ़ रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा कल्चर हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, इन सब सब्जेक्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा ये आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे टिपिकल सब्जेक्ट और टिपिकल टॉपिक आते जाएंगे, जिससे कि हमारा पहले साइंस में इंटरेस्ट होगा तभी साइंस को लोग सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक हम आम जनमानस की और बहुत सारी चीजों के साथ विज्ञान को नहीं जोड़ेंगे, जैसे भटनागर जी ने आज बहुत सारी ऐसे रोचक तथ्यों को सामने रखा, और विज्ञान और आम जनमानस की माइथोलॉजी, मिथ्स और जितनी तमाम चीजें हैं उनके साथ उसको जोड़ा। क्योंकि आदमी के साथ अगर संचार करना है, एक आम आदमी के साथ संचार करना है, तो जब तक उसकी रुचि के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसके लिए वो ड्राई एंड ड्राई बन के रह जाएगा। वेरी राइट सर। थैंक यू सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू। नरवादिया निधि जी। नमस्कार सर। भटनागर जी का जो संभाषण था वो बहुत अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गंगा ही नहीं, हमारे सभी देश की नदियां कल और एकदम साफ होनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए, ताकि सभी को स्वच्छ पानी मिले और उनकी सुंदरता से देश की सुंदरता में बढ़ोतरी हो। इस ट्यूसडे लेक्चर सीरीज में भटनागर जी ने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया, हमें बहुत अच्छा जानकारी मिली हमें, जिसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और डायरेक्टर NMC जी और हमारे डायरेक्टर नकुल जी, जिनके प्रेरणा से ये लेक्चर संभव हो पा रहा है, उनका भी तहे दिल से आभार है। और पीयूष जी और निधि मैडम और मेरी सारी टीम, डॉक्टर अरविंद सर, इन सब के लगातार सहयोग और कंटिन्यूस हम लोग इसके लिए काम करते हैं, जिससे कि ये सक्सेसफुल ये सीरीज़ हो। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हम लोग कराते हैं, आपके इस पे भी ऑनलाइन रहता है। तो जो व्यूवर्स अभी नहीं ज्वाइन कर पाए, वे बाद में भी इसे देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनका भी, और अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं लाइव, उन सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे ही नई नई चीज़ें समझते रहें। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉल्फिन के बारे में सर ने बताया, तो उस पर हमने एक फिल्म भी बनाई है आधे घंटे की, जो सिर्फ डॉल्फिन कंजर्वेशन के साइंस के ऊपर बनी हुई है। और उसमें IIT दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। और वो क्वेश्चन ऑफ साइंस नाम का एक 26 एपिसोड का सीरीज है, जिसमें एक एपिसोड उस पर बेस है। तो यदि आपको कभी समय मिले तो आप ज़रूर इसको देखिए। ये हमारे इंडिया साइंस पे भी अवेलेबल है, जिसमें डॉल्फिन कंजर्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।